دین کے شرط پہ ہم اتفاق و اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معاف کریے گا، آپ یہ سمجھوتا کر لو اور پھر یہ کہو تو اللہ کے رسول نے بھی ایسے سمجھوتے نہیں کرے. کافروں نے کہا تھا اللہ کے نبی 6 مہینے تم ہمارے خدا کی عبادت کر لو، ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ لکم دینکم ولی دین. نہیں، پہلے تو کہا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. میں کروں گا نہیں جس کی تم کر رہے ہو، اور تم کرنے والے نہیں جس کی میں کر رہا ہوں. تو کلیئر ہے معاملہ. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ اور ہمارے لیے ہمارا راستہ. فرق ہو ایمان ہے. حضرت عمر نے کہا یہ 3 دن اگر دیر سے آئے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. 3 دن فجر میں وہ ظہر میں برابر گیا، عصر میں بھی گیا. 3 دن وہ تو 1 دن بیچارہ دیر ہو گئی ہوگی، لیکن 3 دن کے لیے عمر نے شرط لگائی اگر 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس واقعے کی روشنی میں ہم کیسے لگے؟ ایمان ہے. آئیے ایمان پیدا کرتے ہیں. اور ایک اور منظر دکھلاتا ہوں تمہیں نماز کا، ایک اور منظر دکھلاتا ہوں تمہیں نماز کا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ نہیں ہے. صحابہ کرام ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ کو لڑتے لڑتے ایک قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. قلعہ فورٹ، ایک قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اس قلعے کا نام ہے قلعہ تستر. اس قلعے کا نام ہے قلعہ تستر. رات بھر جنگ چلی. قلعے کے پاس آ گئے صحابہ اور قریب تھا تھوڑے سے تیر اور بتا دیے جائیں، کافروں کو مار دیں، گھائل کر دیں. اس قلعے پر جھنڈا لہرا دیں، اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیں. قریب تھا کہ وہاں تک پہنچ جائیں. اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فجر کی اذان. کون سی اذان تھی؟ فجر. صحابہ کرام آپس میں سوچنے لگے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کیا ہوگا. اذان ہو رہی ہے. ادھر کافروں نے خوشی منانا شروع کر دی. اب مسلمان یہاں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، یہ نماز میں ہوں گے اور ہم قلعے پر چڑھ کر ڈھابا بولوں گا اور جا کر ہم اپنے کفر کا پرچم قلعے کے اوپر لہرا دیں گے. کافروں نے خوشیاں منانا شروع کر دی. اب تو صحابہ نماز میں جائیں گے اور ہم قلعے پر چڑھائی کر دیں گے. ادھر صحابہ سوچنے لگے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کافر قلعے پر چڑھ کر اس پر چڑھائی کر دے گا اور یہ جیتا ہوا قلعہ جو ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے ہم اس کے قریب پہنچ گئے، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپس میں مشورے ہوئے کیا کریں. سارے صحابہ نے کہا نماز قضا کر لیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، چلو پہلے قلعے کو حاصل کر لو. اور پھر صحابہ نے تیر برسانا شروع کر دیے. پھر صحابہ نے تیر برسانا شروع کر دیے اور کافروں کے چھکے چھڑا دیے اور جا کر قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اس قلعے تستر کو حاصل کر لیا، اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. لیکن جب جھنڈا لہرا رہے تھے اس قلعے پر، جب محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، جب جھنڈا پکڑ کر لہرانے کی اس پہ داڑنے کے لیے جب چلے، حضرت انس واقعے کے راوی ہے جیسے جھنڈا اس قلعے کے اوپر گاڑا گیا، اس قلعے کے اوپر رکھا گیا اسلام کا جھنڈا، ویسے ہی سورج نکلنے لگا. جھنڈا اس قلعے پر لگا کر صحابہ نیچے آئے، سورج نکل چکا تھا. کہنے لگے چلو فجر کی نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ ہم لوگ قلعے کو حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیے تھے، قلعہ مل گیا، اب چلو نماز پڑھیں. سارے صحابہ نے وضو بنایا، نماز پڑھنے لگے. حضرت انس کا بیان ہے جب سجدے میں گئے صحابہ سجدے میں گئے، انس بھی سجدے میں گئے. حضرت انس اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو سے زمین میں اکٹھا ہو گیا اور زمین تر ہو گئی. پھر دوسرے سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ سجدے میں روتے روتے
सज जमीन तर हो गई। 2 रकातें इस हाल में पड़ी। लोगों ने रोने की वजह पूछी, है अलग इतना क्यों रोए हो? आखिर हम लोगों ने पूरी रात जुए में तो नहीं गुजारी, शराब में तो नहीं गुजारी, खेल कूद में तो नहीं गुजारी, मैच खेलने में तो नहीं गुजारी, क्रिकेट का मैच खेलने और देखने में तो नहीं गुजारी, हमने तो लीडो और कैरम बोर्ड खेलने में नहीं गुजारी, हमने तो पूरी रात जंग लड़ने में और जिहाद करने में गुजारी। ये भी तो एक दीन का काम था। फिर आखिर नमाज अगर दीन के काम के लिए छूट गई, मजबूरी में छूट गई, तो इस पर रोने की क्या वजह है? हजरत अनस कहते तुम ठीक कह रहे हो, ये भी दीन का काम था, मजबूरी थी। और हमने तो मसलहतन नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि झंडा लहरा दिया जाए। अगर नमाज पढ़ेंगे तो काफिर इसी मौके की ताक में आकर हमला कर देंगे और हमें भी मार सकते हैं और किले पर भी हम कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए रोया हूँ क्योंकि जब से नमाज फर्ज हुई है बाजमात और मैंने अल्लाह के नबी के पीछे भी ये नमाज पढ़ी, उस दिन की तारीख से लेकर आज तक ये मेरी पहली नमाज थी। फजर की जो तर्क हुई है, ये मेरी पहली नमाज है जो मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूँ। मुझसे दुनिया की सारी चीजें छीन ली जाती, अनस का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता, मेरे बीवी बच्चे मार डाले जाते और मेरे पूरे कारोबार में आग लग जाती, मेरा पूरा बिजनेस चलकर राख हो जाता। मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना दुख मुझे फजर की नमाज के कज़ा हो जाने का हो रहा है, इस फजर की नमाज के छूट जाने का हो रहा है जो मैं बाद में सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस वाक़े की रोशनी में हर मुसलमान जो यहाँ बैठा अपने गरीबान के बटन खोल कर झांके और बताए और अपने दिल से पूछे, अपने आप से सवाल करे कि आपको कितना बड़ा मुसलमान लग रहा है, अपनी ज़बान से मुसलमान कहलाने के लायक है भी नहीं। इस वाक़े की रोशनी में हम कहते हैं जब से नमाज फर्ज हुई है उस दिन से लेकर अब तक ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूँ, वो भी मजबूरी में, वो भी जंग इस्लाम के लिए लड़ रहे। तब यहाँ तो ये नस्ल बैठी है जिसको तकरीरें सुनने की कशौर नहीं है, जो बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते थे तो आपके सहाबा के सरों पर बैठी हुई जो मक्खियां होती थी वो भी नहीं उड़ा लाते। ये तो हम लोग हैं। और नौटंकी यहाँ तक कि मोबाइल के स्क्रीन से भी जगजीत साहब की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आपको इजाजत किसने दी है कि हरकत करो, किसी को कैमरे में कैद करो, एक जगह बंधा हुआ बन गया, आप ये लो इधर उधर करो, न सुनोगे न दूसरों को सुनने दोगे। ये सारी चीजें फैशन बन गई है, इस्लाम से इसका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आज मना कर देंगे कल फिर यही होगा, कल मना कर देंगे पर मत होगा। हम तो कुत्ते की उस दुम की तरह हो गए हैं जो टेढ़ी रहती है, कभी सीधा होने का नाम नहीं लेती। अगर उसको 12 साल भी सीधा करने के लिए किसी पाइप में रखो और 12 साल के बाद भी अगर निकालो तो वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, हमें भी टेढ़ा ही रहना आता है। मौलवी जरजीत तुम क्या, तुम्हारे बाप की उम्र के लोग भी आए, 80-80 साल के बुढ़े मौलवी भी चीखते और चिल्लाते रहे, हमने उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे तुम्हारी क्या मानेंगे। बेशर्मी की हद है। हम ये ईमान की बातें कर रहे हैं कि अपने अंदर ईमान पैदा करो, मोमिन कैसे बने। और ये रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। अब कहाँ अज़ानों में वो तासीर रही। हज़रत बिलाल अल्लाह की कसम जब आज़ान दिया करते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हज़रत बिलाल की आज़ान में जो तासीर थी वो ये थी कि फरिश्ते आसमान से जमीन पर बिलाल की आज़ान सुनने के लिए नाजिल हुआ करते थे। बिलाल जब आज़ान देते थे औरतें अपने घरों की छतों पे चल जाया करती थी बिलाल की आज़ान सुनने के लिए। दरख्तों पर चिड़ियां खामोश हो जाया करती थी, कौवे खामोश हो जाया करते थे बिलाल की आज़ान सुनने
करने के लिए उन चिड़ियों में और परिंदों में शऊर आ जाता था, लेकिन ये बेहिस कौम जो यहाँ बैठी है, ये अशरफुल मखलूकात जो यहाँ बैठी है, इसको हित नहीं आती है, इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहती है। परिंदों के अंदर इतना ईमान चल जाता है कि वो बिलाल की आजान सुनते वक्त वो भी गुटुरगू न करें, वो भी चींची न करें, लेकिन आए रही बदबख्त कौम, इसको समझाने वाला कोई नहीं मिला, और मिला तो इसने उसको भी निकाल दिया, इसने इस्लाम की वो कदर नहीं की, ईमान जितने मोबाइल मेरी तरफ लगे हैं, एक का भी छीन लूं तो अभी इनके ईमान का पता चलेगा। इसी में हिजड़े लोगों के गाने भी भरे होंगे और इसी में मौलाना जल्दीज की तकरीर भी, ये इनके ईमान का हाल है। जिसमें गाने भी भरे हों, जिसमें फिल्में भी भरी हों, और उसमें जल्दीज साहब की तकरीर भी भरी जा रही हो, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हमने तो ऐलान कर दिया, राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, हमको दोनों को लेके चलेंगे। ये सूरत हाल है हमारी। ये कौम कैसे तरक्की करेगी? ये कौम, अभी मैंने शुरू में बताया, उस जमाने के जाहिल कितने अच्छे थे। जब यूनान फतह हो गया, यूनान पर सिकंदर आजम ने कब्जा कर लिया, पूरी बस्ती को खाली करवा दिया, और सिकंदर की फौज ने यूनान पर कब्जा कर लिया, सारे लोगों को अपने अंडर में ले लिया। जब टहलता हुआ यूनान से गुजर रहा था, सिकंदर अपनी फौज के साथ तो एक गरीब आदमी को सड़क पर लेटा हुआ देखा। वो सारी दुनिया से गाफिल सड़क पर फटा हुआ कपड़ा बिछाकर लेटा हुआ था, परागंदा हाल था। उसकी गुर्बत का हाल ये था कि सुबह खा ले तो शाम को नहीं, और शाम को खा ले तो सुबह नहीं। वो सो रहा है, कोई भी आ जाए हमें क्या मतलब है, चाहे सिकंदर आए या कोई और आए, हमारी गरीबी तो कोई दूर करने वाला नहीं है। वो लेटा हुआ था, सिकंदर ने उस आदमी को देखा, ये बेचारा लेटा है, और सारे लोग तो भाग गए, शहर खाली कर दिया है। हमारे पुलिस ने, हमारी फौज ने यूनान पर कब्जा करके सबको अपने अंदर में ले लिया है, और ये आदमी देखो हमसे डर भी नहीं रहा है और लेटा हुआ है। खामोशी के साथ यूनान का ये सिकंदर आजम जब उसके करीब जाता है, देखता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है। सिकंदर ने उसको एक लात मारी, बोलता है, कहता साहब लात क्यों मार रहे हो? कहा कि हम सिकंदर हैं, पूरे मुल्क पर तुम्हारे कब्जा कर लिया है, मेरी पुलिस ने पूरे यूनान को अपने हाथ में ले लिया है, सारे लोग अपने घरों में घुस गए हैं, और तू आराम से सो रहा है, यहाँ लेटा हुआ है, सड़क पर तुझे डर नहीं है मेरा, मेरी पुलिस का। उस आदमी ने जो जवाब दिया वो इबरत हासिल करो, गरीब जरूर था लेकिन हक दो था। उसने कहा हुकूमत तो हुक्मरां करता है, हुकूमत तो हाकिम वक्त करता है, और लात मारने का काम गधे का होता है। उस आदमी ने कहा लात मारने का काम गधे का होता है। अब मुझे यूनान के बारे में खतरा हो गया है सिकंदर, हमारा ये मुल्क यूनान किसी इंसान के हाथ में नहीं गया है, किसी हाकिम वक्त के हाथ में नहीं गया है। इस यूनान की हुकूमत एक गधे को दे दी गई है, और जब गधा किसी मुल्क का हुक्मरां बन जाए, हाकिम बन जाए, तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। यही गधों जैसी हमारी हालत हो गई है। 2019 में देखिएगा, हमारी किसी नालायकी की वजह से फिर इंसान के हाथ में ये मुल्क नहीं, किसी गधे के हाथ में चला जाए। हमने कह दिया जो कहना, मुकदमा हम पे चलेगा, तुम तो आराम से सो जाओगे, तुम्हें तो यही सुनना है। मौलवी साहब सुन लिए, बोल दिए, बहुत अच्छा लगा। एक केस जो मेरे ऊपर चल रहा है बनारस में, 18 लाख रुपया तक मेरा उस केस में जा चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप अंदाजा लगाओ, आप तो सिर्फ यहाँ बैठ के सुन लेते हो, और सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने ऊपर। आह किया, वाहवाह किया, बस बहुत अच्छा बोले और चले गए। कभी आपने खैर खबर लिए, कभी पूछा है जगजीत साहब आप इतना खतरनाक बोल लेते हो, उसके बाद जो मुकदमे चलते हैं, कभी मेरी जरूरत आपको पड़ी या नहीं पड़ी? इस कौम ने आज तक इस बात का एक सवाल नहीं किया। मेरे भाइयों, यही से हमें समझ में आता है कि कौम को सिर्फ सुनने का शौक है। किसी के लिए हमदर्दी के लिए दो बोल, हम तुमसे कोई 100 रुपए नहीं मांगेंगे, हम तुमसे लाखों
खुदा की भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन हमदर्दी होती है। 2 लफ्ज़ अगर सुन लिए जाते हैं तो बोले का हौसला बढ़ जाता है। लेकिन जिस कौम ने आज तक एक सवाल न किया हो, हमदर्दी में कुछ न पूछा हो, और कौम से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। बस मैंने भी अपना उसूल बना लिया, बोलते जाओ जाते जाओ, क्योंकि कयामत की निशानियां करीब हैं और वो तो आनी है। इसलिए जो चीजें अल्लाह के नबी ने बताई वो तो हो करी रहेगी, वही हो रही है। वही जो आदमी जिससे ऊंचे पैमाने पर होता है उसका खर्चा भी उसी तरह होता है। अब मेरा वकील जानता है कि मौलाना साहब अच्छा पैसे वाले हैं, तो जो दूसरों से 100 रुपए लेता तो मुझसे 1000 रुपए लेता है। मेरे भाइयों, अब तसव्वुर करो, उसी हिसाब का खर्चा भी उस इंसान का पड़ जाता है। हमने कोई ऐसे ही इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, 36 मुकदमों का सामना किया है, 36 मुकदमे मेरे ऊपर ठोके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़े हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगी है और किसी से आज तक कोई कंप्रोमाइज भी नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने केस में नजात मिली है कोर्ट से मिली है और बाइज्जत बरी होकर निकले हैं। हम ये जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून चाहे जैसा भी हो, लेकिन इंसाफ मिलता है। देर से सही, थोड़े दिनों के लिए परेशान करके सही, लेकिन इंसाफ के कटघरे में जब इंसान खड़ा होता है तो उसको न्याय जरूर मिलता है। चाहे देर से मिले लेकिन मिलता है, चाहे मरने के बाद मिले लेकिन मिलता है। मेरे भाइयों, होम्योपैथिक दवा की तरह है जो मरने के बाद फायदा करती है, ऐसी हमारे हिंदुस्तान का हाल है। कानून का वो मिलता जरूर है इंसाफ, लेकिन देर से मिलता। उमर फारूक का इंसाफ तो है नहीं कि एक बुढ़िया एक लकड़ी के पुल पर हजरत उमर फारूक का गरीबान पकड़ के कहती है, आए उमर मेरा इंसाफ किसी पुल पर करेगा या कल पुल सराब पर करेगा। अरे उमर मेरा इंसाफ इस लकड़ी के पुल पर करेगा या कल कयामत के दिन पुल सराब पर मेरा इंसाफ करेगा। और हजरत उमर अपने घोड़े से उतर जाते हैं और कहते हैं, माँ उमर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो पुल सराब पर इंसाफ करे, इसी पर तेरा इंसाफ होगा। बता क्या है तेरा मुकदमा। कहा, अरे उमर इस जंगल में मेरी बकरी चारा चल रही थी, ये तेरी पुलिस इस जंगल में घूम रही है, इस पुलिस ने मेरी बकरी को पकड़ा और काट लिया और भून के खा गई, मुझे मेरी बकरी गिराओ। अरे उमर मेरे घर का पूरा गुजर बसर उसी बकरी के दूध पर है। अब ये बताओ, अरे उमर मेरा इंसाफ किसी पुल सिरात पर करोगे या कयामत के दिन पुल सिरात पर। हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ा, ये बताओ क्या ये बुढ़िया ठीक बोल रही है। उसने जवाब दिया, हाँ भूख लगी थी, हमें मालूम नहीं था ये किसकी बकरी है, हमने चढ़ती हुई बकरी को पकड़ लिया और काट दिया। हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाली और उस बुढ़िया के सामने उसका हाथ पकड़ के काट दिया, कत्ल कर दिया, काट दिया। और काटी चोर की सजा चाहिए इस्लाम में, उसने तो डकैती डाली है, मैंने इस पुलिस वाले का हाथ काट दिया, नौकरी से इसको बर्खास्त कर दिया और आए पुड़िया रहा तेरी बकरी का मामला तो कल तेरे घर बैतुल माल चोरी हो जाएगी। हम अपने राजकोट से सरकारी फंड से बैतुल माल से वो बकरी तेरे घर पहुंचा देंगे, दूध वाली। हजरत उमर फारूक ने दूध देने वाली बकरी उसके घर पहुंचा दी। ऑन स्पॉट फैसला, उसी जगह पर मुकदमा सुना गया, कोई गवाह नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई तारीफ नहीं। यही अदालत है, यही जज है, यही वकील है, यही हाथ काट दिया गया है, यही ऑन स्पॉट फैसला कर दिया गया है। ये ईमान की ताकत थी और जब तक ये ताकत हमारे अंदर पैदा नहीं होगी मेरे भाइयों नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। हमने सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने का शौक है, बच्चे पैदा करने जाओ, लेकिन तालीम और तरबियत कुछ नहीं दी हमने अपने बच्चों को। और तालीम और तरबियत की होती तो इतने बेशर्म नहीं होते कि सुनने के बाद भी उनकी अकल ठिकाने। हमने तालीम नहीं दी है, हमने उनकी तरबियत नहीं की है। हम बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, तो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक कुतिया को देखो 12-12 बच्चे देती है, उनके यहाँ तरबियत नहीं है। लेकिन जानवरों के बच्चों को जब तरबियत दी जाए तो इंसान को भी वो फेल कर देते हैं। और देख लो सर्कसों में नाचने वाले कुत्ते, और देख लो सर्कसों में काम करने वाले शेर,
जब इनको समझाया जाए और सिखाया जाए तो इनको भी अकल आ जाती है। जानवरों से इबरत हासिल करो, कुत्तों से और जानवरों से इबरत हासिल करो कि अगर उसको पढ़ाया लिखाया और सिखाया जाए तो वो भी तहजीब याफ्ता हो जाता है। लेकिन हाय रे इंसान, तू कितना नालायक हो चुका है कि तुझे पढ़ाया जा रहा है, कुरान बताया जा रहा है, हदीस बताई जा रही है, रब का फरमान सुनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद तेरे कान के अंदर क्यों नहीं रुक रहा है? समझ में नहीं आ रही है बात। मेरे प्यारे साथियों, हम कहाँ हैं और किस स्टेज पर हम हैं, हम जरा तसव्वुर करें। हम अपने गरीबानों में जरा झांक कर देखें। मेरे भाइयों, चलो जज्बात में जब आप आए हो, कह रहे हो तो देखो उस जिले उस स्तर को जब हासिल कर लिया गया तो अनस के बयान से आप क्या फर्क हासिल करेंगे कि ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज है जो मैं सूरज निकलने के साथ पढ़ रहा हूँ। क्या हम कह सकते हैं रमजान के अलावा हम किसी महीने में मस्जिद में जाते होते हैं? और रमजान में भी कितने लोग ऐसे हैं जो सहरी खा के सो जाते हैं? सहरी खाई और सो गए, अभी भी उठा रही पढ़ लेंगे नहीं जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इलाहुल आलमीन, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरा उम्मती तेरा बंदा जो भी दुआ करे, अय अल्लाह तू उसकी दुआ में बरकत देना, तू उसकी दुआ सुन लेना। सुबह फजर की नमाज से उठना और सुबह नमाज के बाद दुआ करना और दुआ के अंदर अपने रिस्क या अपनी जरूरियात को मांगना। अल्लाह के नबी उसके लिए कह रहे हैं आए मेरे परवरदिगार, मेरा जो भी उम्मती, मेरा जो भी मुसलमान तेरा बंदा, मेरा उम्मती फजर के बाद जो दुआ करे उसकी दुआ में बरकत देना, उसको सुन लेना। आज हमारे कारोबार फेल है, हम मोदी को घोष रहे हैं कि जीएसटी लगा दी, हमें ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरे भाइयों तुम भी तो बताओ कि तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर कौन सा अमल किया है? काबे के रब की कसम, जाओ एक दुआ को मैं बता रहा हूँ, अगर इस दुआ को पढ़ने लगो और पाबंद बन जाओ तो ना ओजी की जरूरत पड़ेगी ना मोदी की जरूरत पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज पढ़ने और 5 वक्त की नमाज में जो 2 सजदे होते हैं, एक सजदा करके उठो, दूसरे सजदे में जाने से पहले सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह। अब दूसरा सजदा करोगे ना, दूसरे सजदे में जाने से पहले ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इसके बाद दूसरा सजदा करो और फिर देखो जो आदमी वरज़ुक़नी में आ रहा है, रिज़्क़ अता फरमा। जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और 5 वक्त की नमाज में ये दुआ भी पढ़ने लगे सजदे के बीच में, उस आदमी के घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता है, वो आदमी कभी भूखा मर ही नहीं सकता है, उसके घर में मोदी की पाबंदियां कभी गिर या डाल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मोदियों के बाप का कानून नहीं है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिखाया हुआ कानून है। और रसूलुल्लाह का सिखाए हुए कानून को मोदी क्या उसका बाप नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए नमाज पढ़ना है। मौलाना ऐसे आप काम बताओ जो नमाज न पढ़ना पड़े, घर बैठे हो जाए, तो फिर उन मौलवियों के पास जाओ जो 51 रुपए लेकर ताबीज दे देते, ले जाए इसको अपने गले में डाल देना, बरकत हो जाएगी, ले इसको पत्थर के नीचे दबा देना, आसमान से बारिश होगी नोटों की। राम रहीम हो क्या? अगर ऐसी कोई दुआ होती कि जिसको पत्थर के नीचे दबा देने से नोट आने लगे, तो ये मौलवी किसी दूसरे को नहीं बताता, सारे नोट वो अपने घर में रख लेता। इतनी कोई मौलवी बताता किसी को लो नोट के, ऐसा कोई तावीज़ नहीं है। और अल्लाह की कसम, अगर ऐसा तावीज़ होता तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में साबते और आसमान से नोटों की बारिश होती, दिरहम और दीनार की बारिश होती, और मेरे नबी 2-2 महीने पेट पे पत्थर नहीं मांगते। बेवकूफ बना रहे हैं कटकुल्ला, बेवकूफ बना रहे हैं।
एक साहब आए साहब मौलाना साहब कानून प्रॉब्लम। मौलाना साहब अरे बताओ ना बेटा शर्माते क्यों हो? एक लड़की से प्यार हो गया। ओ हाँ बताओ। लड़की चाहती, लड़की तो चाहती है, लड़की का बाप नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि शादी हो मेरे साथ। अच्छा कल आना। अब मुर्गा बड़ा था तो पैसे भी तो ज्यादा। ये लो क्या होगा? ये काजल मैंने पढ़ा है, इसको अपनी आंख में लगा लेना। उसके बाप का नाम पूछ लिया, उसकी माँ का नाम पूछ लिया। अब ये काजल लगाकर उसके बाप के सामने चले जाना, या ये ताबीज पहन के उस लड़की के बाप के सामने चले जाना। तुम्हारी आंखों पे जैसे ही उसके बाप की नजर पड़ेगी दीवाना हो जाएगा और अपनी बेटी को दे। एक बार हम भी उस मौलवी के पास आए और पैंट शर्ट पहन के गए ताकि पहचान लेना। कहने लगा बेटा क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा लड़की से प्यार हो गया। बोला बहुत कारगर है मेरा ये ताबीज, सबसे ज्यादा इसी के मरीज आते हैं मेरे पास। मैंने कहा लेकिन मैं भी 50 के पास जा चुका हूँ, फायदा नहीं होगा। बोला मेरे पास 100% होगा। कहने लगा बताइए लड़की का नाम? मैंने कहा लड़की का नाम जैनब। बाप का नाम? मैंने कहा नूरुल्लाह। मैंने कहा प्यार भी तेरी बेटी से हुआ तो मैं क्या करूँ? हंगामा करने लगा। मैंने कहा कि अपनी बेटी की बात आई तो हंसा रहे हो, दूसरों की बेटियों के घर बिगड़वा रहे हो। चीखने लगा। मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ? फिर मैंने अपना नाम बताया कि मैं मौलाना जर्जीस हूँ। इधर आओ। अरे यार मौलाना साहब मस्जिद में 3000 रुपए की नमाज पढ़ाता हूँ, यही 1 घंटा मुद्दा कर लेता हूँ तो यार सब बताए यही धंधा, ये धंधे बना रखे हैं। बोला 3000 रुपए बताइए मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लूंगा। मैंने कहा इसमें कितनी इनकम हो जाती है? कहता 30-40 महीने इतना कमा। जो मौलवी कम पैसों में मस्जिद में रुका हुआ है उसका बायोडाटा मालूम करो, ऊपर इनकम कहाँ से आ रही है। 2-2.5-3 हजार रुपए में रुका कैसे है? और ताबीज और घंटों पर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो पता लगाओ किसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर किसकी मर्जी आ रही है। मुझे बता कि तेरा कौन सा, यहाँ बैठा हुआ हूँ चैलेंज देता हूँ, मुझे बता तेरे पास कौन सा ताबीज है जो फायदा करता है। मुझे बता, मुझे वो बीमारी है, मुझे फायदा कैसे देगा? अल्लाह के नबी की बीबी हजरत आयशा कहती हैं हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा दर्द सर। अल्लाह के नबी अपनी बीबी हजरत आयशा के माथे को पकड़ते हैं, यूं दबाते हैं, 3 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं और 3 बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और दम करते हैं। ये दुआ बताई जा रही है बीमारी की। मौलवी बीमारी के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते आयशा इस दर्द सर में अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। हज़रत आयशा मुस्कुरा के कहने लगी हाँ हाँ आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आप मुझे दफन कर दें ताकि दूसरी औरत को लाने का मौका मिल जाए आपको। फरमाया आयशा गलत न सोचो, अगर मैं दूसरी बीवी से शादी करना चाहूँ तो कौन रोकेगा मुझे? अल्लाह मुझे इजाजत देगा तो मैं कर ही लूंगा। क्या तुम्हारे अलावा और मेरी बीवियां नहीं है? बीवी की वजह से नहीं। आयशा तुम कितनी खुश नसीब होती अगर तुम मेरे गोद में मर जाती। मैं तुम्हें अपने हाथ से घुटन देता, मैं तुम्हें अपने हाथ से कफन पहनाता, फिर मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाता, फिर मैं कब्र में उतरता और तुम्हें कब्र में उतारता, और फिर मैं मिट्टी देता और फिर मैं तुम्हारे लिए दुआएं खैर करता। आयशा तुमसे ज्यादा खुश नसीब फिर कौन सी बीवी होती? मेरे भाइयों आप दर्द सर का ताबीज नहीं दे रहे हैं, आप दर्द सर के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, आप बीमारी के लिए दुआ पढ़ रहे हैं।
मोमिनो मुसलमानों ईमान अपने अंदर पैदा करो। 20 चीजों 25 रुपए में जाकर अपना ईमान बेचने वालों, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो। ये कह देना बहुत आसान है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम में ताकत है तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह के कलाम को तुम गले में लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने सीने पे लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने हाथों में बांधोगे। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ो, उसके ऊपर अमल करो तो बड़ी ताकत है। इस कैप्सूल में बड़ी ताकत है, ये बुखार को एक झटके में दूर कर देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस कैप्सूल को हाथ में बांधो, उस कैप्सूल को कपड़े में लपेट के गले में लटका लो तो बुखार दूर कर देगा। इस कैप्सूल में ताकत है का मतलब यह है कि इसको डॉक्टर के तरीके के मुताबिक खाओगे तो ये तुम्हारी बीमारी दूर करेगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के तरीके के मुताबिक और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब इस कुरान पे अमल करोगे तो ये कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। हमने मतलब ही बदल दिया, जो नबी ने बताया उस पर अमल ही नहीं है और अपनी तरफ से हमने कई नई चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसका नाम ईमान और इस्लाम से जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अब आप ही बताइए, आइए एक और वाक़े की तरफ चलते हैं, एक और वाक़े की तरफ चलते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब का वो मंजर उठाओ, जंग हो रही है, अल्लाह के रसूल उस जंग के अंदर मौजूद है, जंग हो रही है, अल्लाह के नबी उस जंग के अंदर मौजूद हैं। सुनिए बड़ी प्यारी बात और बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी उस जंग में मौजूद हैं, लेकिन काफिरों ने इतना परेशान कर रखा है कि अल्लाह के रसूल को इस टीम बनाने में, आपको प्लानिंग बनाने में इतनी देर हो गई कि असर की नमाज का वक्त निकल गया। ग़ज़वा अहज़ाब में असर की नमाज का वक्त निकल गया। कभी इधर खड़ा करते किसी को तो उधर से काफिर हमला कर रहा है, आपको प्लानिंग करने में इतनी देर लग गई, इधर कर रहे जंगी प्लानिंग होता है, प्लानिंग मंसूबा जो बनाने में इतनी देर लग गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट गई। जब देखा असर नहीं, जल्दी से पानी तो था ही नहीं, हाथ मिट्टी पे हाथ मारा, तयम्मुम किया और नमाज असर पड़ी। जब सहाबा और आपने नमाज पढ़ी तो सूरज डूब गया था, सूरज गुरूब हो गया था, यानी मगरिब का वक्त आ गया। लेकिन नमाज असर पढ़ने के बाद असर का वक्त चूंकि खत्म हो गया था, इसलिए अल्लाह के नबी ने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जब खड़े हुए तो आपने बद्दुआ दी। सुनो मुसलमानों, सुनो, आपने बद्दुआ दी। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में लोगों ने बहुत मारा, बहुत पीटा, इतना मारा कि सर फट गया, खून पैरों पे गिरा और जूते तक खून से जम गए। लेकिन जब फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी अगर आप गए तो इन ताइफ वालों को हम तो पहाड़ियों में लाकर कुचल दें और पीस दें, अल्लाह के नबी कहते नहीं, अगर आज ये ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली औलादें मेरे ऊपर ईमान जरूर लाएंगी। फरिश्तों ने कहा आए अल्लाह के नबी आप कहें तो हम इनको बर्बाद कर दें। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत से ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। नहीं, बद्दुआ नहीं दी उनको, ये तो उन्होंने मारा लेकिन बद्दुआ नहीं दी। पूरी जिंदगी में कभी बद्दुआ नहीं दी अल्लाह के नबी ने। लेकिन जब काफिरों की वजह से नमाज छूट गई, असर का वक्त निकल गया, आपने जल्दी से नमाज तो पढ़ी, लेकिन खड़े हो गए और नमाज के पास खड़े होकर आपने जो बद्दुआ दी वो बद्दुआ, ये जुमले सुनो। आपने फरमाया मलाल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, आय अल्लाह इन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का वक्त निकल गया। आय अल्लाह मोहम्मद तेरे दरबार में बद्दुआ कर रहा है, आय अल्लाह इन काफिरों की वजह से मेरी नमाज छूटी, इन काफिरों के घरों में आग लगा दे, इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों में आग लगा दे। और जब ये मर जाएं और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन किए जाएं तो आय अल्लाह तो इनकी कब्रों को भी आग से भर दे। जानते हो पूरी जिंदगी कभी बद्दुआ नहीं दी, और बद्दुआ दी तो किनको दी, जिन्होंने नमाज छुड़वाई। जो लोग किसी की नमाज छुड़वाने का बायस बनते हैं, मतलब एक आदमी आया 12 बजे, चलो जल्दी से, बहुत अच्छी फिल्म आई है पीके, आमिर खान की है, बहुत अच्छी है, पंडितों का मजाक उड़ाया गया, ले गया हमें जबरदस्ती, पीके दिखाई। जोहर का टाइम निकल गया, 12 बजे गए, 3 बजे आए, जोहर का टाइम निकल गया।
जिसकी वजह से निकला, हम तो गुनाहगार है ही, जिसकी वजह से निकला वो कितनी बड़ी बद्दुआ का मुस्तहिक है, क्योंकि उसने छुड़वाया। मलाल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, और डेंजर दुआ देखो, खतरनाक दुआ, अय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, ये लोग जी रहे हैं, अय अल्लाह इनको जिंदा रहने का मौका मत दे, इन्होंने मेरी असर की नमाज छुड़वा दी, अय अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और जब ये मर जाएं कब्र में दफन कर दिए जाएं तो इनकी मरने के बाद इनकी खबरों को मैं भी दुआ भर दे, इसी कब्र को जहन्नम बना दे। एक नमाज आपकी छुड़वाई बस, तब ये हाल है। हम तो छोड़ रहे हैं और छुड़वा रहे हैं, और फिर भी हाँ पक्के मुसलमान हैं। हमको कोई काफिर कह के तो देखे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमसे कोई काफिर कहकर तो देखे, अब उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज ईमान नाम की चीज नहीं रह गई है। इस वाक़े की रोशनी में हम अपने आप को देखें कि हम कैसा लग रहे हैं। बताओ ईमानदारी के साथ हम कैसे नजर आ रहे हैं, जरा तसव्वुर करो। आज शादी होती है, नौजवान लड़का है, नाम है अब्दुल्ला इब्न हंजला, हंजला बाप का नाम है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग हजरत हंजला ये वाकया सुनाते हैं, ये हंजला का वाकया नहीं है, उनके बेटे अब्दुल्ला का वाकया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला शादी करते हैं, और शादी के बाद नई बीवी उनके घर में आती है। आज पहली रात है, अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं, और अपनी बीवी के साथ उन्होंने शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाई है। हमारी ज़बान में जिसको सुहाग रात बोला जाता है, आज नई बीवी आई है, प्यार और मोहब्बत की रात है, अपनी बीवी के साथ रात गुजारते हैं, जाहिर है कि शबे ज़ुफ़ाफ़ भी मनाते हैं। अभी बीवी से शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाकर फारिग नहीं हुए थे, इतने में जंग का ऐलान कर दिया जाता है। लोगों जंग खुल गई है, अपने घर से जल्दी निकलो। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में एक लम्हा नहीं रुक सकता। हजरत हंजला ने इसी हाल में उठ गए और अपने घोड़े को खोल लिया और मैदान जंग में जाने लगे। उनकी बीवी जल्दी से पानी लेकर आई, कहती है मेरे शौहर मैं जानती हूँ कि तुम जंग में जा रहे हो, मेरे शौहर मैं जानती हूँ कि आप लड़ने के लिए जा रहे हो, मेरे शौहर मैं जानती हूँ कि आप मैदान जिहाद में जा रहे हो। अभी मेरे साथ एक रात में पूरी तरीके से तुम्हें सोने का मौका नहीं मिला, अभी मैंने तुम्हें पूरी तरीके से सुकून भी नहीं पहुँचाया, इतने में जंग का ऐलान हो गया और तुम जंग के लिए जा रहे हो। आए मेरे शौहर मैं रोकने नहीं आई हूँ, आए मेरे हस्बैंड मैं रोकने नहीं आई हूँ, आए मेरे सरताज मैं मना करने नहीं आई हूँ। ये तलवार लेके आई हूँ, ये ले लीजिए, ये घोड़े की लगाम में पकड़िए और जाइए, लेकिन ये पानी में लेके आई हूँ। अभी आपने मेरे साथ संपर्क बनाया है, जिस्मानी ताल्लुकात बनाया है, हम मित्री की है, अभी सोहबत की है, जिमा किया है, अभी मेरे साथ रात गुजारी है, इसलिए आप अभी जुम्बी है, नापाक है, आप नहा लीजिए और जंग में जाना है तो कम से कम पाक होकर जाइए। हज़रत हंज़ला घोड़े पर बैठ गए। आए मेरी बीवी, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, अब अगर नहाऊंगा तो देर हो जाएगी। और अल्लाह के नबी का ऐलान ये है कि इस ऐलान के बाद अब एक लम्हा भी कोई आदमी घर में न रुके। आए मेरी बीवी, मेरे पास अब नहाने का भी वक्त नहीं है। अपने घोड़े को दौड़ाया और चलने लगे और चलते चलते कहने लगे, आए मेरी बीवी 2-4-6 दिन इंतजार करना, अगर आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद कर दिया गया, तो इज्जत गुजारना और दूसरा निकाह कर लेना। फिर अब्दुल्ला इब्न हंज़ला मैदान जंग में गए, लड़ने लगे, लड़ते शहीद कर दिए गए। इनकी गर्दन पे तलवार चल जाती है, ये कत्ल कर दिए जाते हैं। खबर बीवी के पास आती है, हजरत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला के जिस्म को घर पे लाया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं जल्दी से इनको दफनाने की तैयारी करो। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता है, उसको इसी हाल में दफन कर दिया जाता है जिन कपड़ों में वो कत्ल होता है। अल्लाह के नबी ने उनकी बीवी की तरफ इशारा किया कि एक नजर इनकी बीवी को अपने शौहर की बॉडी दिखला दो। बीवी ने अपने शहीद शौहर के जिस्म को देखा, कई जगहों से खल्ली चल ली है, गर्दन पर भी तलवार पड़ी हुई है, एक रात की ब्याही हुई औरत है,
अब एक रात ही गुजारा था इसके शौहर से। अपने शौहर को देखती है, कहती है अल्लाह के नबी मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए और जल्दी से इनको दफनाने की तैयारी कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं की बीवी मेरा शौहर शहीद हुआ है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, ये मसला तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तेरे शौहर को इसी हाल में दफन कर दिया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाएगा, क्योंकि कयामत के दिन ये अपनी कब्र से इसी हाल में उठेंगे कि इनके जिस्म से खून गिर रहा होगा और अल्लाह इनके जिस्म से गिरने वाले खून को देख कर कहेगा मैं अपने बंदे से क्या हिसाब लूं, ये तो मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करके चला आया, जाओ बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दो। अब्दुल्ला की बीवी चीज पड़ी, अल्लाह के नबी मेरे शोहर को गुस्ल देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तरीका मेरा चलेगा या तेरा चलेगा? कहने लगी अल्लाह हक से नहीं शर्माता, मुझे बताना पड़ रहा है अल्लाह के नबी मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ जो बीवी से मिलने के बाद एक शौहर पर फर्ज हो जाता है। मेरी शादी हुई, मेरे शौहर ने मेरे साथ रात गुजारी, मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया और उसी वक्त आपका ऐलान हुआ और ये बगैर गुस्ल किए हुए चले गए और शहीद कर दिए गए। इन्होंने गुस्ल नहीं किया था, इसलिए आप गुस्ल दे दीजिए इनको। अल्लाह के रसूल ने आसमान पे नजर डाली, आय अल्लाह क्या करूं? अब्दुल्ला के लाश के साथ, अब्दुल्ला की डेड बॉडी के साथ मैं क्या करूं? इन्होंने तो गुस्ल जनाज़ा भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद आसमान से नजरें हटाई, आंखों में आंसू आए और फिर फरमाया आए अब्दुल्ला की बीवी अल्लाह ने कह दिया है इसको ऐसे ही दफन कर दो, गुस्ल की जरूरत नहीं है। हंज़ला की बीवी अब्दुल्ला की बीवी कहती है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे हबीब समझ में नहीं आ रहा है, फरमाया समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला की बीवी इसलिए मेरे शौहर को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, मैं नहीं दूंगा क्योंकि तेरे शौहर की शहादत के बाद आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए और 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरा शौहर असील बनाई का है, एक ने नहीं 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है, अब उसको मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है। जाओ साहबियों अब्दुल्ला के हंज़ला को दफन कर दो। ये कौन सा ईमान था? ये कौन सा ईमान था? शादी हुई, पूरी रात ये अपनी बीवी के साथ नहीं सोए, जिहाद का ऐलान सुना और निकल गए और मैदान जंग में शहीद हो गए। बीवी के हाथ की मेहंदी भी नहीं हटने पाई थी, 24 घंटे भी अपने शौहर के साथ नहीं रही और बेवा हो गई और फिर जिंदगी भर लोगों ने कहा कि दूसरा निकाह कर ले, अपनी जवानी को क्यों बर्बाद कर रही है, अभी तू जवान है, अभी तुझे सहारे की जरूरत है। लेकिन अब्दुल्ला की बीवी ने फिर पूरी जिंदगी गुस्ल नहीं, पूरी जिंदगी शादी नहीं की। जब भी लोग कहते अल्लाह के नबी ने भी कहा की बेवा बीवी क्यों कर रही है अपने आप पर, जा इज्जत तेरी पूरी हो गई है, अब तो तू दूसरी शादी कर ले, तुझे मौका और तेरा शौहर भी कहकर गया था। कहने लगी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल क्या आप नहीं चाहते ये कयामत के दिन मुझे मैदान महशर में पुकारा जाए और ये कहा जाए आय अब्दुल्ला इब्न हंज़ला की एक रात की विधवा, एक रात की सेवा, तूने भी अपने शौहर के इंतजार में पूरी जिंदगी नहीं गुजारी, पूरी जिंदगी नहीं, तुझे भी जन्नत के अंदर तेरा वही शौहर तुझे दिया जाएगा जो दुनिया में मुझसे छूटा है, जो दुनिया में मुझसे दूर किया गया है। मैं कयामत के दिन अल्लाह से ये कह सकती हूँ दुनिया में तूने मुझसे मेरा शौहर छीना, कम से कम जन्नत में तो मुझसे मेरा शौहर मत छीन, अब तो तू मुझे जहन्नम में न डाल, मुझे मेरा शौहर अता फरमाते, अगर दुनिया में छीना था तो जन्नत में क्यों छीन रहा है, जन्नत में तो तू मुझे अता फरमा दे। और अल्लाह उससे मुझसे कहे आय अब्दुल्ला इब्न हंज़ला की बीवी तू ठीक कह रही है, मैंने दुनिया में तुझसे तेरा शौहर छीना, जा जन्नत में मैं तुझे तेरा वही शौहर अता कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी क्या आप नहीं चाहते कि मेरे साथ अल्लाह से मामला करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्जी मेरे प्यारे साथियों। फिर अब्दुल्ला इब्न हंज़ला की बीवी ने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। ये कौन सा ईमान था हमें बताए? जो आदमी मोबाइल पॉकेट में न रख सके,
जो आदमी छोटी सी कुर्बानी न दे सके, वो आदमी इस्लाम और ईमान के लिए कौन सी कुर्बानी देगा? जो आदमी इतनी बड़ी कुरान हदीस की बातें सुनकर भी टस से मस न हो और उसके कान पर जू न रखे, उससे कौन सी तवक्कुआत रखी जा सकती हैं और लगाई जा सकती हैं? यही सारी कमजोरियां तो आज दिल्ली वाले बैठे हुए हैं मरकज सेंट्रल में, वो देख रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमें जब चाहते लात मार देते हैं और जहाँ चाहते नचाया जा रहा है, जहाँ चाहते डांस करवाया जा रहा है, जहाँ जो जैसा वंदे मातरम कहो, मैं तुम्हारे बाप का राज कर रहा है। तुम्हें हिंदुस्तान रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।